Hello everyone, welcome back. Today we will start a new chapter, chapter 11, Let Us Travel. So you must have seen number of people traveling to different places and through different mode of transports. So why these people used to travel, we did know about that. Jeffpo is the reason. But on what are the factors on which their choice of mean of transports depend upon, that's what we are going to learn in this chapter. Moreover, you must have seen that different modes of transports are available in different parts of our country, and what are the reasons behind these variation and why they are specifically available in those particular areas. That's what we are going to learn in this. So let's go and start learning something new, starting with the means of transports depends on the choice of means of transport. आप कौन सा mean of transport चूज करेंगे ये डिपेंड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस, आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है इस बात पे डिपेंड करता है. सेकेंडली टाइम, हाउ मच टाइम you have in your hand, that is the second factor. And third and most important factor on which these two things, distance and time, depends upon is the money that you want to spend on travel. If you want to reach far off places very quickly, air travel will be the choice, but train travel gives a better chance to view the scenery. So you can also go with the train travel अगर आपको scenery enjoy करनी है तो. लेकिन अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो you have to go by air, as the train passes through different places and it gives you more exposure of the different places which comes in between. Moreover, जो railways होते हैं, they are ideal for transporting heavy goods and are quite economical also. They are pocket friendly also. आपकी जो पॉकेट है, जो फाइनेंस है, उस पर लेस बर्डन डालती हैं रेलवेज. तो रेलवेज उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा बेटर चॉइस लगती है. सो इट डिपेंड्स कि आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, कवर करना है, कितना आपके पास टाइम है, कितना आप मनी स्पेंड करना चाहते हैं. सेकेंडली, जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है, रोड ट्रांसपोर्ट्स लाइक साइकिल, रिक्शा, कार, बस एटसेट्रा, दीज आर द बेस्ट चॉइसेस फॉर ट्रैवलिंग ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. क्यों? क्योंकि सी आपने कभी भी ट्रेन को आपके दरवाजे के बाहर आते हुए नहीं देखा होगा, बट जो रोड ट्रांसपोर्ट्स हैं, चाहे वो कार हैं, चाहे वो बसेस हैं या ऑटो रिक्शा है, दे प्रोवाइड्स यू डोर टू डोर सर्विसेज, एंड एज दे प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज, सो ऑटोमेटिकली दे बिकम्स more convenient and more comfortable for short distance travel, isn't it? Now, if you stand on the main road in a small town or even in the cities in the morning, what you would see that there are hundreds of workers or the laborers who are riding on bicycle to go to their workplaces, right? And similar scenery can be seen in the evening when they come back from their work, right? So जो cycling होती है, it not only keeps you fit, फ्यूल एफिशिएंट, इसमें कोई नहीं है. आपकी इकोनॉमी, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को भी इससे कोई नुकसान नहीं होता है. फिजिकली आप फिट रहते हैं, सो इट इज़ गुड. मोरओवर, जो वर्कर्स और लेबरर्स होते हैं, ये पॉकेट फ्रेंडली होती है, तो उनको भी ट्रैवल करने में ये जो है हेल्पफुल होती है, और उन्हें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करना होता है. जो ऑफिस टाइमिंग होती है बिटवीन 5 to 9, आप देखेंगे उस वक्त रोड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, एंड अगर आपके पास 4 व्हीलर है, it is very difficult and time consuming to travel, जबकि 2 व्हीलर्स काफी easily निकल जाती हैं. So this is the another reason कि why these cycles are so much popular, or the 2 wheelers are so much popular in the cities. Now, some means of transport used in rural areas differ from those used in urban areas, right? So let us learn about the rural transport, then we will learn about the urban transport. But before we move further, there is this word rural, right? Rural का मतलब होता है something which is related to the countryside rather than the town, whereas जो urban होता है वो बिल्कुल इसके opposite है. urban का मतलब होता है something which is related to the town or city. Okay, so rural is something which is related to the countryside rather than the town. So
in rural areas, farming is the main occupation. In most rural areas, vegetables and fruits are perishable items. They get rotten very quickly, they rot very quickly, jaldi wo sarna galna shuru ho jati hain. So they are transported on daily basis to nearby cities and towns in bullock carts, tractor trolleys or trucks. Similarly, after the harvesting का मतलब होता है कटाई करने के बाद जो वीट और राइस होती है उसकी गनी बैग्स में उनको फिल करके ट्रक को लेडन करके जो रूरल रोड्स होते हैं वहां से वो सिटीज की तरफ निकल जाते हैं. सो दिस इज अब यहाँ तक आपने देखा कि इट इज बुलक कार्ट, ट्रैक्टर ट्रॉली एंड ट्रक्स विच आर यूज्ड, राइट, वेदर इट इज फॉर वेजिटेबल्स और इट इज फॉर fruits or it is for wheats, rice, such grains, right? Now, do you know that if you see large number of bullock carts laden with sugarcane lined along a road, it means that there is a sugar mill around. And usually आपको ये सिनेरियो उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश के रीजन्स में ये ज़्यादातर आपको दिखता है कि रूरल रोड है और उसके साइड में जो है काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, वहाँ पे कार्ट्स हैं, either bullock carts or the trucks, they are laden with the sugar cane and they are aligned there. That is quite obvious क्योंकि आगे अगर आसपास शुगर मिल है तो फार्मर की भी प्रेफरेंस होती है कि वो जो शुगर केन है वो शुगर मिल में वो सेल कर सके. Right, so the goods carried by different means of transport give us a clear indication that the crops grown in that area, what kind of crops are grown in that area. So indication मतलब sign या piece of information. So अगर आप ये देखेंगे कि जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या चीज़ भरी हुई है, कौन सा गुड्स है, कौन सा सामान भरा हुआ है, तो वो क्लियरली आपको बता देगा कि उस एरिया में कैसी क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती है. सो द बुलक कार्ट, ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक्स लोडेड विद एग्रीकल्चर गुड गो फ्रॉम villages to cities. When they go back to the villages from cities, they are laden with gas cylinder, light machinery, textile, scooters, etc. All of them are made in factories, in towns and सिटीज. सो बुलक कार्ट, ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक्स जो हैं जब ये विलेजेस से सिटीज की तरफ आते हैं तो इनमें एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं, और जब ये सिटीज से विलेजेस की तरफ जाते हैं इसमें यूजुअली जो लाइट मशीनरी होती है या फैक्ट्री मेड मटेरियल होता है या गैस सिलेंडर है, टेक्सटाइल यानी कि फैब्रिक जो क्लोथ्स होते हैं वो होते हैं, या फिर स्कूटर वगैरह जो LMV होते हैं, लाइट वेट मोटर व्हीकल्स, वो भरे हुए होते हैं और उनको विलेजेस तक पहुंचाया जाता है फ्रॉम द सिटीज. नाउ सच सिनारियो यू मस्ट हैव सीन कि कैसे ट्रक्स की लोडिंग और अनलोडिंग होती है. जो विलेजेस से आया हुआ सामान है उसको यहाँ पे अनलोड किया जाएगा और जो सिटीज में प्रिपेयर्ड सामान है जो सिटीज में मेड है वो ट्रक्स में फिल करेंगे और यहाँ से उन्हें फर्दर आगे भेजेंगे. नाउ डू यू नो दैट द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया. अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ग्रो किया जाता है वो सिटीज तक नहीं पहुंचेगा, और सिटीज में जो भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी लाइट मशीनरी वगैरह बनती है उसको हम रूरल एरिया तक नहीं पहुंचा पाएंगे. सो इट इज द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट which is actually a bridge between rural and urban area. Now let's move to the coastal area. First of all, the word coastal का मतलब होता है वो एरिया जहाँ पे land meets water, जो जहाँ पे पानी जो है वो जमीन से मिल रहा होता है, स्पेशली द सी वाटर, जहाँ पे सी वाटर और लैंड आपस में मिल रहे होते हैं उसको हम कोस्टल एरिया कहते हैं. सो इन कोस्टल एरिया द फिशरमैन यूज boat to transport fish and other seafood items. Sometimes steamers and ferries equipped with cold storage are used to transport fish. राइट. सो आपने 2 वर्ड्स सुने इसमें. जो फिशरमैन है वो बोट्स में फिशेस को ट्रांसपोर्ट करता है, सी फूड आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं. स्टीमर्स और फेरीज यूज किए जाते हैं. सो स्टीमर्स वो वाली बोट्स होती हैं विच आर पावर्ड बाय स्टीम से जो चलने वाली बोट्स होंगी उन्हें हम स्टीमर्स कहते हैं. और देयर आर फ्यू बोट्स विच आर फॉर कन्वेइंग पैसेंजर और गुड्स. शॉर्ट डिस्टेंस में, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ वाटर जो होता है उसमें पैसेंजर और गुड्स को कैरी करने के लिए जो छोटी छोटी बोट्स यूज की जाती हैं उनको फेरीज कहा जाता है. उनमें कोल्ड स्टोरेज भी होती है. कोल्ड स्टोरेज से ऐसा होता है कि उसमें जो फिशेस वगैरह हैं उनकी डिकेइंग थोड़ी स्लो हो जाती है.
Similarly, on the hilly areas, mules are used for transporting goods along with pittus or coolies. As you can see in this picture, these are mules. Mules जो होती हैं बेटा, mules are the offspring of male donkey, that is jack. जो male donkey होता है jack, उसको क्रॉस ब्रीड करवाया जाता है फीमेल हॉर्स मेयर के साथ, और उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसको हम म्यूल्स कहते हैं, जिसे हिंदी में खच्चर भी कहा जाता है. सो हिली एरियाज में यूजली, क्योंकि उनमें डोंकी जैसी स्ट्रेंथ होती है और हॉर्स की तरह थोड़ी वो स्पीड भी होती है, तो इसलिए दोनों के कैरेक्टर होते हैं, इसलिए म्यूल्स को वहाँ पे यूज किया जाता है. नाउ डू यू नो दैट अ कोस्टल एरिया इज अ प्लेस वेयर लैंड मीट्स द सी. दिस इज व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी. नाउ नेक्स्ट इज द transportation, how animals contribute in transportation, how the transports where animals are used helps in our economy. Now animals play an important role in rural transportation. आपको पता है विलेज एरियाज होते हैं जहाँ पे रेयर किए जाते हैं एनिमल्स, तो वो ये जो एनिमल्स हैं ये रूरल ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं. और जो बुलक कार्ट है या हॉर्स कार्ट है ये फार्म तक पहुँचती हैं, ये खेत तक पहुँचती हैं. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे हेल्प्स द फार्मर टू लोड द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स easily for quick transportation. And bullocks has been a farmer's friend since olden time. The farmers are used it to different works use करते थे. सिर्फ बुलक कार्ट का काम ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हुआ करता था. देयर वाज अ टाइम जब बुलक कार्ट से जो है वाटर निकाला जाता था फ्रॉम द वेल. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, यहाँ पे ये जो बुल्स हैं ये यहाँ पे मूव करेंगे जिससे ये व्हील रोटेट होगा, और जब ये व्हील रोटेट होगा तो यहाँ से ये जो बकेट्स हैं ये नीचे जाएंगी एम्प्टी होकर के, और नीचे से ये फिल होकर के ऊपर आएंगी, और यहाँ पे इस पॉइंट पे इनमें से पानी को जो है अपने वेजल में दे कैन इजीली फिल इट. सो दिस इज हाउ मैन पावर उन्होंने बिल्कुल नील कर दिया है. विद द हेल्प ऑफ बुल दे आर टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम द वेल. सो दिस इज वेरी इजी. अनदर वर्क इज प्लोइंग द फील्ड. प्लोइंग का मतलब होता है प्लो का मतलब होता है जब फार्मर इम्प्लीमेंट्स होते हैं जिनमें ब्लेड्स लगी होती हैं, और उन ब्लेड्स को सॉइल को टर्न ओवर करने के लिए हेल्प किया जाता था. उन ब्लेड्स को ड्रैग करना पड़ता है, वो बिल्कुल मिट्टी के अंदर धंस जाती हैं, तो उन्हें ड्रैग करके सॉइल को टर्न ओवर किया जाता है. तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ बुल्स हेयर. So these are the other than transportation, these are the different uses, these are the different works where bullock cart used to contribute and help the farmer, and this is the reason why bullock cart is known as farmer's friend. So most farmer take good care of their animal. Now the animal carts, आपने animal carts भी देखी होंगी. They are very common sights in the road of Bikaner and other places of Rajasthan. A cart is loaded with sacks of red chilies and other items जो कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती हैं. These camels are beautifully decked up with टेजल्स एंड बेल्स. डेक्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को आप डेकोरेट करते हैं जब, तो उसे हम डेक्ड अप कहा जाता है. एंड टेजल्स आर द स्मॉल टुफ्ट ऑफ लूजली हैंग्ड थ्रेड. एज यू कैन सी हियर, दीज आर द टेजल्स. उन्होंने थ्रेड को लूजली जो है टाई करके हैंग कर दिया है, और कितने ब्यूटिफुली एज यू कैन सी हियर कैसे कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने अपने कैमल को डेकोरेट किया हुआ है. एंड द ओनर एड्रेस द कैमल बाय हिज सन एंड pets him affectionately. Pets, P-H-E-S, pets. Pets का मतलब होता है touch quickly and gently with a flat of the hand. That is known as pet. So they pet them affectionately. Now, do you know that all animal must be treated with kindness, whether old cows, stray dogs, camels or elephants? Now, the word stray here means, stray का मतलब होता है when some animal they move away aimlessly from the group, they are known as stray dogs. Street dogs can be stray dogs also. So whether they are stray dog or they are camel, elephant or some old cows, they all must be treated with kindness. This is all for today. Bye bye. Take care everyone.